Alright guys, welcome to the top 5 Godi of this week, and let me tell you, we have so much for you. Dalal! It's a fight against Godi media. If you're liking this series, please press subscribe and share the video. तो करना But here, nation really wants to know this big question कि अर्नब गोस्वामी को हो क्या गया है? नहीं, seriously. चक्कर क्या है? ड्रग्स लिए क्या? Because he was actually asking for it. मुझे ड्रग दो, मुझे ड्रग्स दो. But leave everything aside, he was actually asking some really important questions. The center and the state government have made a series of mistakes. ये वीडियो अब आपको दिखा चुके, बिल्कुल सही बात कही, to the point कि they should sack the chief minister and In perpetuity by not sacking the chief minister in Biren Singh. we need solution and all these things. So trying to deflect will not help. We need a solution. And everybody was shocked. And what he's saying here? तो लोगों को लगा अरे छोड़ो इसको, एक बार बोल दिया चलो, फिर दूसरी बार बोल दिया, कमाल कर दिया यार. And he was so straight this time. It is becoming apparent to me that this is not the same BJP that made such a loud noise over Nirbhaya. And those people who are actually worried for Manipur and Northeast, they were like, wow, dude, you're saying the right thing. BJP, different BJP. BJP, 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 BJP. This is a BJP. This is a BJP which responds to this issue only on the eve of Parliament. पार्लियामेंट में तो आपने देख ही लिया क्या हुआ, इतना शोर शराबा, ये वो, काम की एक बात नहीं हुई. कोई चर्चा करना चाहता है वो बोलता हम चर्चा कर रहे हैं, चर्चा चर्चा चर्चा, सोल्यूशन की बात करो. We need a solution. यहाँ यही बात की गई. सच में kudos to him. Why he changed so much? ड्रग्स लिए क्या? I mean, that was a KBC moment here. कि इस पागल बिल्ले को हुआ क्या? ये इतना कैसे बदल गया? हाँ, ए, पैसे टाइम पे नहीं पहुंचे. बी, इसे सच में किसी ने ड्रग्स दे दिए? या सी, ये अपने बॉस के साथ माइंड गेम खेल के और पैसा बढ़ाने की मांग कर रहा है? और डी, जो सबसे ज्यादा रेयर है, कि इसके अंदर का जर्नलिस्ट सच में जाग चुका है. कुछ भी. So it's a mystery. We will talk about it more. Now let's talk about Godi number 5 right now. Deepak. माफी मांगता हूं मैं. After so long we did not talk about him, and we should talk about him. भाई का कंट्रीब्यूशन ही ऐसा है. चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ, लोगों ने कहा अरे एक यात्री तो यहीं छूट गया. And this time he was actually flying on the parliament and he was asking a question and people took it in a wrong way. वो तो बस एक मैसेज देने आया था, लोग कह रहे राघव चड्ढा को, क्योंकि 24 तो मोदी का है. और might be possible he was saying this. सेंटिमेंट है ना, वो मेरे दिमाग से नहीं निकल रहा. पर आप देखो भाई ने नाम कितना कमाया है. मतलब कहीं पे भी कुछ भी होता है, लोग दीपक चौरसिया को याद करने लगते हैं. कौवे ने राघव चड्ढा पे अटैक किया, पर बात दीपक चौरसिया की हो रही है. इसे कहते हैं नाम कमाना. माफी मांगता हूं मैं. But right now so many things are happening in Godi media. He was sitting quietly and watching like this. Now let's talk about Godi number 4. Yes, you guessed it right. क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था. And this time he is actually beating everyone in shamelessness. Yes, he's the winner. बेशर्मी का कोई चेहरा है तो ये है. मणिपुर की घटना हुई, बहुत दुख हुआ लोगों को, पूरे देश को शर्म आ गई कि ये क्या हो रहा है हमारी कंट्री के हिस्से में. ये क्रेडिट लेने आ गया. क्या रे भिकमंगिया, क्या देख रहा है? या इसे क्रेडिट चाहिए. इसने क्या बात की, सुनिए जोर से. ये मेन स्ट्रीम मीडिया का जमाना है. हमारे देश में मीडिया के लिए बहुत सारे लोग कहते हैं कि मीडिया अपना फर्ज नहीं निभाता. Try to understand that, guys. Manipur is burning from past 2 months. 2 महीने से मणिपुर में क्या क्या नहीं हो रहा है, मीडिया चैनल उस पर बात ही नहीं करना चाह रहे. और उसके बाद ये जो वीडियो आया था, ये काफी पुराना था. Past 2 months we are saying that why media is not talking about it, why prime minister is not talking about it. ये दुखद वीडियो आया, उसके बाद FIR और चीफ मिनिस्टर आके बोल रहे हैं कि नहीं, ऐसी तो बहुत सारी घटनाएं हो चुकी हैं यहाँ पे. इन सब पर सवाल पूछने की बजाय ये क्रेडिट लेने आ गया कि देखिए मीडिया की ताकत को आप देखिए कि मीडिया ने कैसे इस पूरे मामले को उठाया. मणिपुर में पिछले 2 महीने से हिंसक घटनाएं हो रही है. खुद चीफ मिनिस्टर बोल रहे हैं कि एक नहीं, बहुत सारी घटनाएं ऐसी हो चुकी है. हंड्रेड्स ऑफ केसेस, सिमिलर केसेस अभी हुआ है. अभी इसीलिए इंटरनेट बैन किया हुआ है. The journalist should put pressure on the government to speak up like this guy is doing. It is quite clear to me that this is a BJP which allows the National Commission of Women to ignore even a complaint on this issue for 34 days. इसके पास के काम के बारे में अगर ना भी बात की जाए तो हर एक जर्नलिस्ट का टोन ऐसा कुछ होना चाहिए था. This is a BJP which does not even look for the accused when women are paraded naked. 77 days later it asks,
and it responds. They even don't want to talk about it. They will raise questions कि अच्छा इस स्टेट की बात करें, उस स्टेट की भी बात करो, किसी ने कहा राजस्थान पर चर्चा होनी चाहिए सदन। उस स्टेट की भी बात करो, हाँ सबकी बात करो। संसद में अगर बात होनी है तो फिर बंगाल की भी होनी चाहिए। सारे जर्नलिस्ट मिलके उस बात को ऐसे घुमा रहे थे। लिसन टू नविका। कि मणिपुर हमें दिखता है, अच्छी बात है, हमें उठाना चाहिए, लेकिन बाकी हमें नहीं दिखना चाहिए। जो इस देश में हो रहा है उस पर एक भी किसी विपक्षी पार्टी से कोई भी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। Exactly same, but here she got something really strange. राजस्थान इस देश का रेप कैपिटल है ना, तो क्या मैं फैक्ट्स नहीं बोल रही हूँ? तो यहाँ पे उनको जवाब मिला और बड़ा तगड़ा मिला। आप पिछले 5 दिन से इस पे चर्चा कर रही हैं मणिपुर पे। And question was how many debates you conducted? पर मैं आपसे पूछना चाहती हूँ नविका जी, 80 दिन से ऊपर हिंसक घटनाएं हो रही हैं, उससे पहले कितनी डिबेट्स हुई? And look at her face. चलिए वो छोड़िए, मैं पूछना चाहती हूँ बृजभूषण सिंह पे, आपकी ही एक न्यूज रिपोर्टर हैं, बृजभूषण सिंह ने उनके साथ किस तरीके से व्यवहार किया था? मैंने उस दिन आपको एंकरिंग करते हुए नहीं देखा था, फॉर सम रीजन, फॉर वट एवर रीजन। फिर से एक बार फिर से टाइम्स नाउ तो जर्नलिज्म का एक प्रतीक माना जाता है, वो विपक्ष को लेकर बहुत सारी डिबेट्स करता है और प्रश्न पूछने चाहिए। And there are 2 valid questions for Navika and she had no answer. Number 1, आपको कुछ तो डिफरेंस लगता होगा ना, क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन, राइजिंग क्राइम्स अगेंस्ट वुमेन वर्सेस ऑर्गेनाइज्ड मॉब वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। मणिपुर किस श्रेणी में आ रहा है? Number 2, मैं आपसे पूछना चाहूंगी नविका जी, टाइम्स नाउ नवभारत ने सुशांत सिंह राजपूत पे कितनी डिबेट्स की थी? टाइम्स नाउ वाले कर क्या रहे हैं? नहीं सच्ची, मतलब ये एक इन्होंने ट्वीट किया कल। पीएम मोदी फ्लाइज ड्रोन टू अनवील आईटीपीओ कॉम्प्लेक्स भारत मंडलपम इन दिल्ली। थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन किया करो, 2-4 लाइंस इधर उधर लिख दिया करो। हाँ, पिक्चर मोदी जी का ड्रोन उड़ाते हुए है, पर ड्रोन कोई और उड़ा रहा था। ये देखो, थोड़ा तो जर्नलिज्म, थोड़ी तो इन्वेस्टिगेशन डालो यार, शर्म करो। एंड या ऑल्सो दिस गाय गॉट इंस्टेंट फेम। भाई ने जो इधर नाले में लेट के रिपोर्टिंग की है, कमाल का नाम कमाया है। इसी भाई ने एक रिपोर्ट की, या ही ट्वीटेड दिस। खबरों के मुताबिक सिर्फ 2 दिन के भीतर 718 घुसपैठियां मणिपुर के भीतर। ये आंकड़ा 22 जुलाई और 23 जुलाई का है। ये म्यांमार की घुसपैठियां हैं। असम राइफल में इनकी तफ्तीश की है। क्या मणिपुर किसी बड़ी साजिश का शिकार है? अच्छी बात है, सवाल किया है, और सच में अगर ऐसा है तो देश के लिए बहुत टेंशन की बात है। ये सवाल आप चीफ मिनिस्टर से पूछो ना। नहीं सच्ची, यही काम तो करना है जर्नलिस्ट को, और वो कर नहीं रहे। So yeah guys, this is all going on and few clips I want to show you before you go. You will feel little better today. I mean, Kauwe, what are you saying? मैंने सब आपकी हर चीज को माना कि कोरोना का वैक्सीनेशन कराया, सब कुछ हुआ, लेकिन मणिपुर, इसका क्या जवाब है? ये तो असफलता है ही ना केंद्र सरकार की। And also this same reporter Brijbhushan Singh one asking some tough questions to this guy. What are the loopholes if the actions are not being taken? आपको क्या लग रहा है सर, क्यों इतना विलंब हो रहा है? मैडम अपोजिशन, हाँ सर, बीरेन जी, विपक्ष बार बार आपके इस्तीफे की मांग कर रहे हैं, इस पे आप क्या जवाब देना चाहेंगे? And also we want that this Bagad Billa continue this way. This is a BJP which says that this is a national security issue, but does not realize that letting Biren Singh run the state risks both the state and national security. And yeah, KBC का ये question हमको ऑप्शन डी मानने का मन कर रहा है। क्या पता इसके अंदर का जर्नलिस्ट जाग गया हो। So let's believe on option D. फिर से कहता हूं, मीडिया लोकतंत्र का चौथा स्तंभ होता है। बहुत सारी चीजें जो मीडिया के सही सवाल उठाने पर रुक सकती है, थम सकती है, इससे आम आदमी का भला होगा। फॉर एग्जाम्पल मणिपुर। तो बस ये लोग ढंग से अपना काम करें, हम ये चाहते हैं। प्लीज पे दैट। पेट्रोल डीजल हमारे हाथ में नहीं है, रुपया अंतरराष्ट्रीय कारणों से गिर रहा है, महंगाई बेरोजगारी के लिए कांग्रेस जिम्मेदार है, बाकी सारी समस्याएं नेहरू छोड़ गए हैं, और फिर भी कोई दिक्कत हो तो पाकिस्तान चले जाओ। तो करना